بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى يا رب العالمين اللهم آمین۔ دعوت دین کے اصول کے اس دوسرے درس کے اندر آپ تمام احباب کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ گزشتہ درس میں ہماری بات ہوئی تھی دعوت کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کا فائدہ، اور یہی ہمارا آخری موضوع تھا۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے دعوت کی تاریخ۔ دعوت کی تاریخ، ایک چیز یاد رہے، دعوت کی تاریخ جب سے دین ہے تب سے دعوت کا معاملہ انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جب سے دین ہے تب سے دعوت کا آغاز بھی ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اس وحی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا۔ تقریباً 2 سال کا فاصلہ بیچ کے اندر رہا، اور اس کے بعد جب سلسلہ وحی شروع ہوا دوبارہ، اس کے بعد سے آپ کو رسول بنایا گیا، جب آپ کو امت تک دین اور اس کے احکام پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اس طرح کی آیات کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دین دینے کا حکم دیا گیا، اور اسی کے ساتھ آپ رسول بھی بنائے گئے، اور دعوت دین کا حکم بھی انہی آیات کے اندر دیا گیا۔ جیسے جیسے وحی کا سلسلہ بڑھتا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعوت دین کے فرائض مزید بڑھائے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی حکم، جو بھی وحی آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جا رہی ہے، یا جو بھی پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، آپ یہ امت تک پہنچا دیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو بھی وحی نازل ہو رہی ہے، یہ آپ امت تک پہنچا دیں۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین پہنچانے کا حکم دیا گیا، اور یہیں سے اس کی تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنائے گئے اور رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، اسی کے ساتھ آپ کو اس رسالت کو امت تک پہنچانے کی تلقین بھی کی گئی۔ یہ ہے دعوت دین اور اس کی تاریخ۔ ایک آخری حصہ بچتا ہے اس مقدمے کے اندر، وہ ہے اس باب میں لکھی گئی کچھ کتابیں۔ اس عنوان سے لکھی گئی کچھ کتابیں ہیں تو عربی میں زیادہ تر مواد، لیکن اردو میں بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں اہم دعوت دین کے بنیادی اصول، دعوت دین کے بنیادی اصول، قاری صہیب میر محمدی، پاکستانی رائٹر قاری صہیب میر محمدی، فاضل، مدینہ یونیورسٹی۔ دوسری کتاب ہے اصول دعوت، ڈاکٹر عبدالہادی عبدالخالق المدنی، ان کی بھی کتاب اصول دعوت کے نام سے۔ فی الحال 2 مشہور کتابیں یہ آپ کے سامنے جو اس موضوع میں لکھی گئیں۔ اس طرح سے ہم لوگ مقدمے سے فارغ ہوئے، جس میں ہم نے دیکھا اصول کی تعریف، دعوت کی تعریف، اور اصول دعوت کی تعریف، دعوت کی اہمیت، دعوت کا فائدہ،
दावत की तारीख़ और आखिरी हिस्से में इस उन्वान से लिखी गई कुछ किताबें। एक आखिरी हिस्सा बचता है इसके अंदर, दावत की कितनी किस्में हैं, दावत की कितनी किस्में हैं। तो उमूमी तौर पर दावत की दो किस्में कही जाती हैं, एक दावत इलल इस्लाह और दूसरी दावत इला कबूल इस्लाम, दावत इलल इस्लाह और दावत इला कबूल इस्लाम। यानी इस दो किस्मों में पहली किस्म है किसी की इस्लाह के लिए दावत देना। ये काम मुसलमानों के दरमियान किया जाता है। कोई ख़राबी है, कोई कमी है, कोई गलत फहमी है मुसलमान के दरमियान, उनकी इस्लाह की कोशिश की जाती है। ये कहा जाता है दावत इलल इस्लाह, किसी को सही काम की रहनुमाई करना और साथ ही उसकी कमियों की इस्लाह की तलकीन करना और उसकी दावत देना। और दूसरा हिस्सा होता है इसका गैर मुस्लिमों से मुताल्लिक, कि कोई गैर मुस्लिम हैं, उन्हें आप दीन कबूल करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए दावत दें। तो इस तरह से दावत की ये दो किस्में बनती हैं। अब आइए सीधे उसूल दावत की तरफ आते हैं। उसूल दावत का एक नाम अरकान दावत भी है। उसूल दावत का एक नाम अरकान दावत भी है। इस एतबार से उसूल दावत के 4 उसूल बनाए जाते हैं, या अरकान अगर कहें तो अरकान दावत के या दावत के 4 अरकान कहे जाते हैं। अगर उसूल कहें तो 4 उसूल, और अगर अरकान कहें तो 4 अरकान। सबसे पहले एक दाई, पहला रुकन या पहला पीलर दाई, जो दावत का फरीज़ा अंजाम देता है उसे दाई। तफसीलात इंशाअल्लाह थोड़ी देर में। तो पहला रुकन या पहला उसूल, पहला असल या पहला पीलर एक दाई, जो ये दावत का काम अंजाम देता है। दूसरा मदऊ, जिसे आप दावत दे रहे हैं, दूसरा पार्ट वो होता है। तीसरा पार्ट इसका होता है मौज़ूउ दावा, किस बात की तरफ आप दावत दे रहे हैं या किस चीज़ की दावत आप दे रहे हैं। तीसरा हिस्सा है या तीसरा पार्ट मौज़ूउ दावा, कि किस चीज़ की तरफ आप दावत दे रहे हैं। और चौथा पार्ट या चौथा हिस्सा होता है वसाइल दावा, किस तरीक़े से, किस वसीले, किस ज़रिए से आप दावत का काम कर रहे हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं, 4 पीलर हैं इस दावत के, इस दावत के ये 4 पीलर हैं। अब आइए एक एक करके इनकी तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। पहला हिस्सा या पहला पार्ट शुरू करते हैं मौज़ूउ दावा से, कि एक दाई सबसे पहले किस चीज़ की तरफ दावत देगा, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जिसके अंदर 2 हिस्सा हैं, एक आपको ये मालूम हो कि दावत देना किस बात का है, और दूसरा कि आप ख़ुद भी उसके बारे में जानें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल हादिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कहता है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना वमन इत्तबअनी। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप लोगों से कहें, हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा तरीक़ा है। अदउ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन, बसीरत के साथ। बसीरत के कई एक मानी हैं, उनमें से एक माना यकीन के साथ और इल्म के साथ। बसीरत का एक माना इल्म और यकीन होता है। तो गोया एक दाई को ज़रूरी है कि दावत देने से पहले उसके बारे में जान ले, ख़ुद उसे उसका इल्म हो, तब दूसरों पर उस दावत का काम करे। वरना अरबी में एक मक़ूला है, फ़ाक़िदुश्शै ला युअतीही, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप अगर उससे कोई चीज़ की उम्मीद रखें, वो आपको कोई नहीं मदद दे सकता है और ना किसी चीज़ से आपका फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये है कि जब आप किसी को दावत दे रहे हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस चीज़ का इल्म रखें,
اس کے بارے میں جانیں اور پھر اس دوسروں کو آپ اس بات کی تلقین کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی لائن سے جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ آپ کا الیکٹرانک دنیا ہو یا بزنس لائن میں ہو یا ٹیچنگ میتھڈ سے آپ ریلیٹڈ ہیں، جس لائن سے بھی ہیں، اگر آپ اس لائن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تب دوسروں کو آپ اس کے بارے میں دعوت نہیں دے سکتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ اپنی بات نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر رکھ بھی دیتے ہیں تو جیسے عربی میں ایک اور مقولہ ہے کہ من اتا یا من دخل فی غیر موضعہ اتا بالعجائب، کہ جو انسان اپنا فیلڈ چھوڑ کر کے دوسرے فیلڈ میں آتا ہے تو پھر وہ بہت ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر جاتا ہے جو ایک عام ادنا علم رکھنے والا بھی اسے دیکھ کر کے ہنستا ہے اور بڑی عجیب عجیب چیزیں وہ لے کر کے آتا ہے۔ یقین نہ ہو ایک مثال دوں، وہ یہ ایک حدیث ہے، من ادرک رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ جب ایک انسان بغیر علم کے میدان میں کود پڑتا ہے بغیر تیاری کے، تو ایسی صورت میں یہ حدیث ایک مثال کے طور پر دی جاتی ہے۔ ایک شخص آئے اور کہا، علماء جتنے بھی ہیں بدزنی کا شکار ہوتے ہوئے کہا کہ جتنے علماء ہیں سب نے ایک بڑی خوبصورت حدیث چھپا کر کے رکھی ہے، اور وہ یہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ 1 رکعت عصر کی نماز پڑھ لیں، آپ کی پوری عصر کی نماز کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور وہ یہ حدیث پڑھ لینے کے بعد اچانک وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو، اور اس کے بعد آتے رن مشین کی طریقے سے 1 رکعت مارتے فٹا پر، اس کے بعد فری ہو جاتے۔ کسی نے دیکھا، بولا یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو سامنے حدیث دکھائی اور کہا کہ یہ حدیث ہے، من ادرک رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر یا فقد ادرک الصلاۃ۔ آپ یقین مانیں کہ جب بھی آپ بغیر تیاری کے کسی میدان میں جائیں گے تو آپ بھی ایسے ہی عجیب عجیب چیزیں لے کر کے آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس علم کے بارے میں، اس میدان کے بارے میں جانیں اور پھر دوسروں کو اس کی تلقین کریں۔ تو اس لیے جب آپ دعوتی فیلڈ کے اندر آنا چاہ رہے ہوں تو ضروری ہے کہ جس بات کی آپ دعوت دیں، موضوع الدعوہ، اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ آئیے اختصار میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ عقیدے کے مسائل بیان کریں گے، سب سے پہلے عقیدے کے مسائل بیان کریں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں عقیدہ، تو عقیدہ کے بارے میں آپ کو خود معلوم ہونا ضروری ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں، کیا اہمیت ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور دعوت کا آغاز اس سے کیوں کریں گے، اور اس کو عقیدے کے مصادر کون کون سے، کہاں کہاں سے ایک انسان عقیدہ سیکھ سکتا ہے، کن کن جگہوں سے اسے عقیدے کی معلومات مل سکتی ہے۔ تو ایک انسان کو جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ ہے کیا، تب آپ دوسروں کو عقیدے کی تلقین کریں گے۔ دوسرے مسئلے میں آتا ہے شریعت کے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، کرنا نہ کرنا، کون کون سے فرائض، کون کون سی ذمہ داریاں ایک انسان پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں شریعت کے احکام ان کے سامنے رکھیں گے۔ اسی شریعت کا ایک بڑا حصہ ہے وہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تربیت کریں گے، اچھے اخلاق کی تربیت کریں گے۔ چوتھے مرحلے میں آتا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مسلمان پر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کون کون سے واجبات، کون کون سی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ چونکہ ایک مسلمان ہو یا نارملی انسان ہو، وہ اکیلے انسانی زندگی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ 4-5 لوگوں کے بیچ رہے، یہ اس کی، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلٹی انسان کی یہ ہے کہ وہ پرسنل نہیں رہ سکتا ہے، وہ سوشلسٹ ہوتا ہے، 4-5 لوگوں کے بیچ میں وہ رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے بیچ رہیں گے تو آپ کو رہنا کیسے ہے یہ آپ کو سیکھنا ضروری ہوگا۔
पाँचवें मरहले में मुआशरे में जब आप रहेंगे तो हर शख्स एक लेवल का नहीं होता है, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ मकाम के एतबार से जिनकी इज्जत होनी चाहिए, कुछ छोटे जिनके साथ आपको शफकत करनी चाहिए, या कुछ ऐसे भी होंगे जो गांव के बड़े ज़िम्मेदार होंगे। तो एक ज़िम्मेदार और एक आम इंसान दोनों को एक पलड़े में नहीं रख सकते। तो इसलिए कौन छोटे कौन बड़े, किन का क्या मकाम, ये आपको मुआशरे में रहते हुए जानना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह तफसीलात थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे। छठे नंबर पर आता है कि जहां आप रह रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रहने वाले सभी मुस्लिम ही हों, कभी गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं। गैर मुस्लिम दो तरीके से, जैसे आपका इंडिया है, यहाँ आप के साथ जो गैर मुस्लिम है वो फुल अथॉरिटी के साथ है। कहीं ऐसी जगह हो सकती है जहाँ आप पावर में हो, मुसलमान हुकूमत हो, लेकिन वहाँ गैर मुस्लिम आपकी हिफाजत में रहना चाह रहे हो, उनके भी कुछ हुकूक हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बुनियादी तौर पर ये 6 मसाइल इंशाअल्लाह मौज़ूअ दावा के अंदर आएंगे। जो जिस बात की आप दावत देंगे वो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये 6 चीज़ें इंशाअल्लाह तफसील के साथ आपके सामने आएंगे। जी हाँ, आपके सामने बस एक इशारा रखा गया कि क्या क्या चीज़ें इस मौज़ूअ दावा के अंदर आती हैं। आप कहेंगे कि ये 6 पॉइंट्स आपने लाए कहाँ से कि मौज़ूअ दावा में ये चीज़ें आएंगी। आइए कुरान से शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस करने का ज़िक्र किया कि नबी बनाए गए, आपकी ज़िम्मेदारी दी गई, वहाँ कुछ चीज़ें आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ये 4 जिम्मेदारियाँ एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ज़िक्र की। वो जिम्मेदारियाँ क्या हैं? अल्लाह ताला कहता है यतलू अलैहिम आयातिहि, अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ करके सुनाएंगे, पढ़कर सुनाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। यहीं से मालूम होता है कि बग़ैर कुरान की तिलावत सीखे हुए आप उसके मसाइल नहीं समझ सकते। बग़ैर कुरान सीखे हुए आप उसके मसाइल सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो नबी को पहली जिम्मेदारी दी गई यतलू अलैहिम आयातिहि, कुरान की तिलावत लोगों को सिखाएंगे। व युअल्लिमुहुमुल किताब, अभी आपने कुरान सुना, अब कुरान पढ़ना सीखेंगे और कुरान समझना भी सीखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा कि कुरान इसलिए नाजिल हुआ है लियद्दब्बरू आयातिहि, ताकि इस कुरान की आयतों पर लोग गौर करें, समझें कि अल्लाह कह क्या रहा है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह क्या रहा है, तब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो कुरान को सुनना और कुरान सीखना या सिखाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िम्मेदारी दी। वल हिकमा, तकरीबन इजमा है मुहद्दिसीन का कि हिकमत से मुराद यहाँ सुन्नत की तालीम है, हदीस की तालीम। तो कुरान और हदीस अगर एक साथ नहीं हैं तो आप दीन नहीं सीख सकते हैं। तो दीन सीखने के लिए कुरान के साथ साथ हदीस सीखना भी आपके लिए ज़रूरी है। और चौथा मरहला आता है वयुज़क्कीहिम, लोगों को दिलों की सफाई या लोगों की तरबियत आपको करनी है। तो ये 4 जिम्मेदारियां यहाँ आयत करीमा के अंदर। एक तीसरी आयत के अंदर, दूसरी आयत में अल्लाह ताला कहता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से, उसकी पकड़ से डराएं या उसकी नाफरमानियों से डराएं। तो ये डराना दरअसल आपका मकारिम अखलाक, अच्छे अखलाक की तालीम भी हो सकता है। दूसरे जो हुकूक आपके सामने आए मुआशरे में, आपके ख़ुद के हुकूक या ज़िम्मेदारियाँ या दूसरे बड़े छोटे के हुकूक या गैर मुस्लिमों के हुकूक, सुन्नत से आपको ये तालीम मिलेगी जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी लाइफ, जो 23 साल ज़िंदगी है, आपने सीरत तैयबा पढ़ें, आपको वहाँ इन हदीसों के शक्ल में किसके साथ
कैसा कैरेक्टर लेना है, कैसा बिहेवियर रखना है, ये आपको वहाँ इंशाल्लाह मिलेंगे। इसीलिए कहा किताब से अगर सिर्फ लेना चाहें, हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में मालूमात मिल जाएं, लेकिन तफसीलात आपको सिर्फ कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप हदीस की तरफ आएँ, चूँकि हदीस कुरान के साथ 3 रिश्ते होते हैं। आप ये ना समझें कि अभी उसूल दावा के अंदर हदीस कहाँ से आ गई। हकीकत ये है कि ये 3 मरहले आपको जानना ज़रूरी है कि कुरान का हदीस का ताल्लुक़ कुरान से किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले कुरान में जो हुक्म है, हदीस उसकी ताकीद करती है। कुरान ने हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो। या मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो नमाज की ताकीद आ रही है। दूसरा रिश्ता होता है कुरान से कि कुरान की तफसीर करने वाली होती है हदीस। हदीस कुरान की तफसीर करती है, इसके अंदर जो पोशीदा चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, हदीस उसे क्लियर करती है। जैसे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज का हुक्म दिया गया, कैसे पढ़ना है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्रैक्टिकली बतलाया, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। अब कुतुब हदीस आप उठा करके देख लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। ये है शरह या उसकी तफसीर। तीसरा हिस्सा होता है कुछ अहकाम कुरान के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन शरीयत में चूँकि वही का वो दूसरा हिस्सा होता है हदीस, लिहाजा उसके अंदर इन चीज़ों का बयान होता है। जैसे किन औरतों से निकाह नहीं कर सकते हैं, किन औरतों से निकाह नहीं कर सकते हैं। कुरान के अंदर एक का जिक्र आया है और वो है वअन तजमअ बैनल उख्तैन, हालांकि कई चीज़ों का वहाँ जिक्र है मुहर्रमात। चौथा पारा जहाँ ख़त्म होता है आखिरी आयत हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये लंबी आयत पढ़ लें। उसके बाद उसी के अंदर आता है वअन तजमअ बैनल उख्तैन, कि दो बहनों को एक साथ एक निकाह में नहीं रख सकते हैं। इसी के अंदर कुछ और भी रिश्ते हैं जिनका इजाफा हदीस करती है। किताबुन निकाह के अंदर आप पढ़ें, हदीस के अंदर वहाँ आपको मिलेगा कि एक साथ औरत और उसकी फूफी, औरत और उसकी फूफी या औरत और उसकी खाला एक साथ एक निकाह में नहीं रख सकते हैं। तो ये 2 हुक्म इस कुरान के ज़ायद है, और कुरान के साथ साथ जो हुक्म शरीयत साजी में कुरान का है, वही हुक्म यहाँ सुन्नत का भी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िम्मेदारी सिर्फ कुरान सिखाने के लिए नहीं बल्कि हदीस सिखाने के लिए भी थी। एक और दलील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों को खिताब करते हुए कहा वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, तुम्हारे घरों में जो कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं उन्हें भी याद करो, और जो हिकमत तिलावत की जाती है उसे भी याद करो। हिकमत यानी सुन्नत, ये भी याद करो। और इसी की एक ज़िंदा मिसाल उम्मुल मोमिनीन फ़क़ीह उम्मत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों चीज़ों को याद करने का हुक्म दिया कि इन दोनों चीज़ों को याद करो। तो इन्हीं आयतों के अंदर और अहादीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौज़ूउद दावा, एक जगह पर इन अल्फाज के साथ तो मुश्किल है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये उसूल आपको मिलेंगे कि एक दाई किन चीज़ों की दावत दे, किन चीज़ों की दावत दे। इस बाब में सबसे जामे हदीस उसे रखें और उसके बाद इंशाअल्लाह बात समेट लेंगे। इस बाब में जामे हदीस जो तमाम मसाइल को एक साथ शामिल करती है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो रिवायत, जब उन्हें मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा जा रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नका तक़दिमु अला क़ौमिन अहली किताबिन, तुम जिन लोगों के पास जा रहे हो सबसे पहले उन्हें जानो कि वो कौन लोग हैं। कहा वो अहले किताब हैं, मालूमात काफ़ी हैं उनके पास।
किताब है उनके पास, इल्म काफ़ी मजबूत है, लिहाजा जब जाएं तो कुछ चीज़ें याद रखें। फल्यकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। सबसे पहले जिस बात की आप दावत दें वो इस बात की गवाही हो कि लोग अल्लाह के वहदानियत का इकरार करें और मेरी रिसालत की गवाही दें। तो ये पहली चीज़ हो जो अक़ीदे की तालीम दे। फ़इन्हुम अताउ लिज़ालिक फ़अख़बिरहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरद अलैहिम ख़म्स सलावातिन फ़ी यौमिन व लैला, कि फिर जब ये अक़ीदा उनका सही हो जाए, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह को अकेला रब मान लें और इस बात का इकरार कर लें कि मैं रसूल हूँ, तब उन्हें बताइए कि नमाज कायम करें, शरीयत के हुक्म को उनके सामने रखें, शरीयत की तालीम दें। जैसा कि हमने कहा दूसरे मरहले में शरीयत की तालीम दें, तीसरे मरहले में अखलाकियात की तालीम दें। उसी हदीस के दूसरे अल्फाज में है व तवक्का कराइम अमवालिहिम, कि जब ज़कात वसूल कर रहे हों इस दरमियान उनके उम्दा माल लेने से बचें। और बाज़ में है व तवक्का दावत अल मज़लूम, कि मज़लूम की बद्दुआ से आप अपने आप को बचाएं। ज़ाहिर सी बात है जब माल लेंगे और दूसरों का माल जुल्म के तौर पर लेंगे या गलत तरीके से लेंगे ज़बरदस्ती, तो इसी सूरत में उनकी आह लगेगी और उनकी बद्दुआ निकलेगी। ये है अच्छे अखलाक, ये है अच्छे अखलाक। और इसके अलावा दूसरे और जो हुकूक आपके सामने आए थे कि जैसे मुआशरे में रहते हुए, चूँकि ये भी मुआशरती एक मसला है, कहा तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु फ़ी फ़ुक़राइहिम, ये मुआशरती मसला है कि किसके साथ आपको कैसे रहना है। बड़े छोटे के हुकूक, मालदार और गरीब, ये एक तकसीम है अल्लाह की तरफ से, ये तकसीम आपको भी बहरहाल रखनी है। और गैर मुस्लिम अगर रह रहे हैं उनसे जिज़िया लेना है, उनसे ज़कात नहीं लेना है, उनसे ज़कात नहीं लेना है, अलबत्ता उनसे टैक्स या जिज़िया लेना है। तो यही आयतें, यही हदीस है जिसके अंदर ये 6 मसाइल जो मौज़ू दावा के अंदर दावत के टॉपिक में आते हैं, ये 6 मसाइल आते हैं। इंशाअल्लाह तफसील के साथ अगले दर्स में हम लोग रखेंगे। इन्हीं पर इक्तफ़ा करते हैं। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।